بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1777 ہے اور آج سورۃ الزمر کی 3 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی، اور الحمدللہ آج سورۃ الزمر کی تفسیر کا آغاز ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 1 تا 3 تفسیر کی جائے گی۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ انزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، تنزیل نازل کردہ، الکتاب کتاب ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، العزیز جو بڑا غالب، الحکیم جو خوب حکمت والا ہے۔ انا انزلنا بے شک ہم نے نازل کیا، الیک آپ کی طرف، الکتاب اس کتاب کو، بالحق حق کے ساتھ، فاعبد اللہ لہذا آپ اللہ کی عبادت کیجئے، مخلصاً خالص کرتے ہوئے، لہو اسی کے لیے، الدین بندگی کو، الا سنو خبردار، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، الدین الخالص بندگی خالص، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے اتخذوا بنا لیے، من دونہ اس کے سوا، اولیاء کارساز، ما نعبدہم ہم عبادت نہیں کرتے ہیں ان کی، الا مگر لیقربونا اس لیے کہ وہ ہمیں قریب کر دیں، الی اللہ اللہ کے زلفا زیادہ قریب، انا بے شک اللہ یحکم فیصلہ فرمائے گا، بینہم ان کے درمیان، فیما ان باتوں میں کہ ہم وہ فیہی ان میں یختلفون اختلاف کرتے تھے، انا بلا شبہ اللہ لا یہدی ہدایت نہیں کرتا، من اس کو کہ ہوا وہ کاذب جھوٹا ہے، کفار ناشکرہ۔ ترجمہ ہے، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے، جو بڑے اقتدار کا مالک ہے، بہت حکمت والا ہے۔ اے پیغمبر بے شک یہ کتاب ہم نے تم پر برحق نازل کی ہے، اس لیے اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ بندگی خالص اسی کے لیے ہو۔ یاد رکھو کہ خالص بندگی اللہ ہی کا حق ہے، اور جن لوگوں نے اس کے بجائے دوسرے رکھوالے بنا لیے ہیں، یہ کہہ کر کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، ان کے درمیان اللہ ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ کسی ایسے شخص کو راستے پر نہیں لاتا جو جھوٹا ہو، کفر پر جمع ہوا۔ ان 3 آیتوں میں 8 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے۔ دوسری بات، جو بڑے اقتدار کا مالک ہے، بہت حکمت والا ہے۔ تیسری بات ہے، پیغمبر کتاب ہم نے آپ پر برحق نازل کی ہے۔ چوتھی بات، اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ بندگی خالص اسی کے لیے ہو۔ پانچویں بات، یاد رکھو خالص بندگی اسی کا حق ہے۔ چھٹی بات، جن لوگوں نے اس کے بجائے دوسرے رکھوالے بنا لیے ہیں، یہ کہہ کر کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں۔ ساتھی بات، ان کے درمیان اللہ ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ 8ویں بات، یقین رکھو اللہ کسی ایسے شخص کو راستے پر نہیں لاتا جو جھوٹا ہو، کفر پر جمع ہوا۔ بزرگان محترم، پچھلی سورت کا اختتام یعنی سورہ صاد کا اختتام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس صفت سے کیا کہ یہ قرآن سارے جہاں والوں کے لیے ایک نصیحت نامہ ہے۔
اس सूरत की इब्तिदा यानी सूरह जुमर की इब्तिदा भी अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद ही की सिफत से कर रहे हैं कि ये किताब जो तुम लोग अपने सामने देख रहे हो, ये हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी तरफ से खड़ी हुई किताब नहीं है, बल्कि इस किताब को अल्लाह ताला ने आसमान की बुलंदियों से नाजिल किया है। वो अल्लाह जो इख्तिदार का भी मालिक है, हिकमत का भी मालिक है। इख्तिदार का मालिक तो इस लिहाज से कि वो जो चाहे कर सकता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं, उसी की बादशाहत सब जगह चलती है, जमीन में, आसमान में, जमीन के ऊपर, आसमान से नीचे, जमीन के ऊपर, आसमान के ऊपर, जमीन के नीचे, हर जगह रब्बे ज़ुल जलाल ही की हुकूमत चलती है। हिकमत का भी मालिक है परवरदिगार, इसलिए कि वो जानता है कि बंदों के लिए क्या मुनासिब है और क्या नहीं है। इस कुरान मजीद में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं बातों को बयान किया है जो इंसान की रहनुमाई और उसके लिए नफा बख्श है। सूरत अश-शुअरा की आयत नंबर 92 में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान के अपनी जानिब से नाजिल होने के बारे में फरमाया, व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, ये कुरान करीम रब्बुल आलमीन के जानिब से नाजिल किया हुआ है। और सूरत अस-साफ़्फ़ात की आयत नंबर 42 में कहा गया, तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद, ये कुरान मजीद तारीफ के लायक और हिकमत वाले रब की जानिब से नाजिल किया गया है। लिहाजा इस कलाम में किसी किस्म का कोई शुबा नहीं होना चाहिए, और जो कोई इस कलाम के रब्बुल आलमीन की जानिब से नाजिल होने में शक करेगा वो मुसलमान बाकी नहीं रहेगा। जैसा कि आजकल बदबख्त किस्म के लोग ये कह रहे हैं कि इस कलामुल्लाह की चंद आयतें ऐसी हैं जो नऊज़ बिल्लाह कुरान करीम की आयतें नहीं हैं, बल्कि इन आयतों को मादअल्लाह बाद में कुरान मजीद में शामिल किया गया है। जबकि कुरान मजीद एक ऐसी वाज़ेह किताब है कि बड़े से बड़ा फसीह और माहिर शख्स भी इसकी एक आयत भी बना नहीं सकता। जैसा कि खुद कुरान मजीद ने कुरैश के अदीबों और शायरों को चैलेंज किया था, मगर कोई इस चैलेंज को कबूल न कर सका, तो फिर कैसे ये मुमकिन है कि इस कलामुल्लाह के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई हो, इसमें तहरीफ की गई हो, इसमें तब्दीली की गई हो, इसमें कुछ इजाफा किया गया हो। और यह भी एक हकीकत है कि खुद इस कलाम का मुहाफिज अल्लाह है, और जिसका मुहाफिज अल्लाह होता है उसके मुकाबिल में आने की किसी में हिम्मत और जुर्रत नहीं, तो इसमें कुछ तब्दीली कहां की जा सकती है। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे जो कुरान मजीद के सिलसिले में इस गम की बातें करते हैं। और यह हकीकत हमारे मुल्क में जाहिर हो गई, जिस मनहूस ने इस किताब के बारे में यह मुतालबा पूरे मुल्क में करते हुए हंगामा मचाया था कि इसके 26 आयतें निकाल दें, अल्लाह तबारक व अल्लाह ताला ने उसको इस कदर जलील किया कि आज उसका नामो निशान बाकी नहीं रहा। नहीं वो मुसलमानों में रहा, न ही गैर मुस्लिमों में रहा, न इस जात का रहा, न उस जात का रहा, न धोबी का गला घर का न घाट का, वो हैसियत उसकी हो गई। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, कलमंद को इशारा काफी है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने ए मोहम्मद तुम पर यह किताब बिल्कुल हक और सच्ची नाजिल की है कि जो कुछ भी इस किताब में बयान किया गया है वो शक और शुबे से बालातर है, और जो भी मनाजिल जन्नत और जहन्नम के बयान किए गए हैं और जन्नतियों दोज़खियों के जो हालात बयान किए गए वो सब कुछ होने वाला है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हमने आप पर यह एहसान किया है कि आप पर इस कलाम को उतारा है, इस किताब को उतारा है, और इसकी तबलीग के लिए हमने आपको मुंतखब किया है, तो अब आप पर यह लाजिम है कि आप सिर्फ और सिर्फ हमारी ही इबादत कीजिए, हमारी ही इताअत और फरमाबरदारी कीजिए, और हमसे ही डरिए। और याद रखिए कि खालिस बंदगी उसी एक अल्लाह के हक का, उसी एक अल्लाह का हक है, इसलिए कि वही तो है जिसने सबको पैदा किया। तो जिसने तुम्हें पैदा किया तुम्हें उसी की इबादत करनी चाहिए। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर खास नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया, आप खालिस अल्लाह ही की इबादत करें। इसका मतलब यह नहीं है कि नऊज़ुबिल्लाह आप में इखलास की कमी हो कि जिसकी जानिब आपको मुतवज्जह किया जा रहा हो, बल्कि यहाँ मुखातब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूर किया गया, मगर मकसूद तमाम इंसान है कि उन्हें इस जानिब मुतवज्जह किया जा रहा है, जिसकी दलील अगली आयत में है कि इसमें उन लोगों का जिक्र है जो अल्लाह के अलावा दूसरे माबूदों की इबादत किया करते थे। उन्हीं लोगों के लिए बात कही गई कि खालिस इबादत खालिस अल्लाह ही की होनी चाहिए, न कि दूसरों की। चुनांचे अल्लाह ताला ने फरमाया, जो लोग अल्लाह के अलावा दूसरे माबूदों की इबादत करते हैं उनका कहना यह है कि हम उन माबूदों की इबादत इसलिए करते हैं कि वो रब हैं, और बल्कि हम इसलिए इबादत नहीं करते कि वो रब हैं, बल्कि हम इन माबूदों की इबादत इसलिए करते हैं कि इन माबूदों के जरिए हमारा अल्लाह तक पहुंचना आसान होगा। अस्तगफिरुल्लाह। और ये कल क़यामत के दिन हमारे अल्लाह ताला से सिफारिश करें, ऐसा कुछ नहीं। गोया कि इन लोगों के जहन में ये बात थी कि अल्लाह ताला तक पहुंचना नामुमकिन है, इसलिए इन बुतों का सहारा हमें लेना पड़ा। जैसा कि आजकल लोगों का हाल है, वो औलिया अल्लाह के मदारों पर जाकर उनसे दुआएं करते हैं, अपनी हाजतें सुनाते हैं, उनसे मांगते हैं, और उनका मकसद भी यही होता है कि ये तो अल्लाह ताला से हमारी सिफारिश करेंगे और हम जिस चीज की दुआ मांग रहे हैं वो इस चीज को अल्लाह से हमें दिलवाएंगे। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक।
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مری ہوئی ہے کہ یہ آیت 3 قبیلوں کے بارے میں نازل ہوئی، عامر، کنانا، بنو سلمہ، جو کہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ملائکہ نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ جب انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تو اللہ تعالیٰ تو تمہاری دعا بغیر کسی وسیلے کے سنتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اس لیے ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن تعلیمات یہی ہیں کہ ہم اذا استعنت فاستعن باللہ، اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، جب مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔